So good morning student. Today's topic is polynomial for standard 10th. The word polynomials it means the algebraic expression having many terms. Polynomial is a word having two syllables like poly and nomial. Poly belongs to many and nomial belongs to term. So in simple we can say that polynomial is an algebraic expression having many terms. But in general a polynomial means बहुपद in Hindi. A polynomial may be single term, double, triple, etc. or many terms. But according to the definition, the polynomial means the algebraic expression having more terms, 4 or more than 4 terms. But in sometimes it contains single term, double, triple, etc. The definition of polynomials. What is polynomial? Polynomial is an expression. It means algebraic expression of the form px. What is meaning of px? Px, it means polynomial is written in the form of x. So the meaning and expression of the form px, it means we have an expression and the expression is in the form of x. An expression of the form px is equal to a0, a1, x to the power 1, a2, x to the power 2, a3, x to the power 3, up to an x to the power n, where an is not equal to 0, is called polynomial in x of degree n. Is called polynomial of the form px is called polynomial in the form of x having degree n. Sometime the degree of polynomial or a polynomial is written in ascending order of degree and sometime it is also written in descending order of degree. Both are true. पोलिनोमियल जो हम लोग देखते हैं उसमें x का पावर, x का जो पावर है जिसको डिग्री भी बाद में बोलेंगे, यह असेंडिंग ऑर्डर में भी होता है और डिसेंडिंग में भी होता है, दोनों सही है. बट इन जनरल it is written in descending order of power of x. पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका रूप, जिसका फॉर्म a0, a1 x, a2 x स्क्वायर प्लस a3 x3 प्लस an xn. It is written in ascending order of powers, but we can also write an x to the power n plus an minus 1 x का power n minus 1 up to so on. Polynomial can be divided on the basis of terms and degree. On the basis of term, polynomial is namely known as one terms or having one terms monomial,
2 terms binomial, 3 terms trinomial. Example, monomial 4x, there is single term, x square it is also single term. 3x cube is also a single term because terms are separated by sign plus or minus and having different variables. Similarly, 2 terms binomial 4x plus 8, 3 term trinomial like this. Next, on the basis of degree, polynomials can be derived in degree 1 linear, degree 2 quadratic, degree 3 cubic, degree 4 biquadratic. Example, linear x plus 4, quadratic 3x square comma x square dot dot etc etc. These are quadratic. Why? Because here degree is 2. It is clear that in case of quadratic polynomial, the degree must be 2. Similarly, cubic polynomial, degree 3, it is not necessary that 3 terms, but it is necessary that the degree will be 3. Biquadratic, degree 4, these are examples. Now, standard form of linear ax plus b, quadratic ax square plus bx plus c, cubic ax cube plus bx square plus cx plus d, and biquadratic, it means quadratic to the quadratic, ax4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e etc. Note, for पॉलिनोमियल में एक चीज़ और क्लियर करना जरूरी हो रहा है, टाइप्स तो देख लिए कि पॉलिनोमियल जब भी रहेगा तो उसमें अगर वह x के फॉर्म में है, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ x, then the power of x is never goes non-negative integers. कभी भी निगेटिव इंटीजर्स पावर में नहीं आना है. निगेटिव लाइक x to the power 1, it is also written as 1 by x. 4x to the power 2 is written as 4x square. Similarly, under root x, it is written as 1 by x2. So, x का पावर न निगेटिव हो और न फ्रैक्शनल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. न फ्रैक्शन में हो x का पावर और न निगेटिव हो, तब वह पॉलिनोमियल अगर इस रूप में है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी अभी हम लोग नाम लिए, डिग्री. व्हाट इज डिग्री? डिग्री, इट मीन्स इफ द पॉलिनोमियल इज रिटेन in the form of x, then the maximum power, the highest power of x in the given expression, in the given polynomial is known as degree of polynomial. अगर कोई पॉलिनोमियल है, तब डिग्री होगा. नोट दैट. लेट अस सपोज दैट दिस इज polynomial. Why it is polynomial? Here we see the power of x is 4. In this case, the power of x is 3, 2, 1, etc. In this case, all powers are positive integers. So, its power जो होगा वो कभी भी निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना है, उसी को रूट में भी नहीं होना है.
क्यों? क्योंकि x का पावर जो होगा 1/2, इसको हम लोग √x लिख सकते हैं। x का पावर 1/3 इज रिटेन एज क्यूब रूट x। ये नहीं होना है, तब पॉलिनोमियल, अगर ये हो, अगर ऐसा रहा तो पॉलिनोमियल नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नहीं है। इस क्लियर है? लेकिन अगर पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल है, अभी हम लोग डिस्कस किया, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है उसको देखना है। तो इसका पावर 4, 3, 2, 1, 0 एक्सेट्रा। तो 4, 3, 2, 1, 0 इसमें सबसे बड़ा क्या है? तो अमंग these powers the maximum power is 4, so we can say that degree is 4. So here is called polynomial in x of degree, that is n. Why n? Because 1, 2, 3, 4, 5 dot dot infinite n. So it is written as of degree n in this case. It is written as polynomial in the form of x having degree 4, yes 4, etc. Next, degree is also having number of zero indications. It means the number of zeros is same as, it means its numerical value is same as the number of degree. Number of zeros is numerically equal to degree of polynomial. In case of linear, degree is 1, it means 0 will be 1. In quadratic, 0 will be 2 due to having 2, it's a degree 2, 0 is 2. In case of cubic, degree 3 and number of zeros are also 3. Similarly, in case of degree 4, number of zeros are also 4 in numbers. What is the meaning of 0? We know that 0. In case of zeros of polynomial, if polynomial is written in the form of x, अगर कोई पॉलिनोमियल किसके रूप में है? x के रूप में, then that value of x which give, either give or gives, the total value of the given polynomial is 0. अगर कोई पॉलिनोमियल x के रूप में है तो x का वह वैल्यू जिसको बैठा दें तो टोटल का वैल्यू क्या आ जाए? 0. px का वैल्यू क्या आ जाए? 0. तब कहेंगे कि दैट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. तो इन केस ऑफ लिनियर पोलिनोमियल, number of zero will be 1, in quadratic 2, cubic 3 and biquadratic 4. Have you any problem? अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ लें, व्हाट्सएप वगैरह से भी पूछ लेंगे. नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ax² plus bx plus c is equal to 0. What is the meaning of a? A belongs to coefficient of x². B belongs to coefficient of x. C belongs to constant term. Clear? Now how can
we find zeros of the polynomial. It means quadratic polynomial. There are many processes. The first, factorization, which is more common. Then by quadratic equation we can find zeros. सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन से निकाल कर दिखा रहे हैं और कुछ उसका रिलेशन को बताना है. Let us suppose that we have polynomial 4x square plus 7x plus 3 is equal to 0. Is it quadratic polynomial or not? Degree 2. This x have power 1. It means positive power. So it is quadratic polynomial. Now factorization first into last. 4 3 जा 12. The other factor of 12, 2 into 6. Among these three pairs of factors, we select the factors which gives the result 7, which is middle term. Which is middle term. 2 plus 6, 8. This is 7, not possible. 6 minus 2, 4, not possible. 12 plus 1, 13, no. This is 7. 12 minus 1, 11, but this is 7. 4 plus 3, 7, yes. तो यहाँ पर देखेंगे कि जब फैक्टर आप निकालोगे तो निकालने के बाद सिलेक्ट करें कि कौन सूटेबल है. तो फैक्टर्स बहुत से हैं, बट दिस फैक्टर्स जो है 4 और 3 यही आर सूटेबल है. क्यों सूटेबल है? क्योंकि उससे क्या हमको लाना है? मिडिल टर्म. तो मिडिल टर्म लाने के लिए जो फैक्टर्स हैं उसमें से चूज करना होगा. कौन बहुत अच्छा है? बने बहुत अच्छा कहने का अर्थ है सूटेबल है. तो यहाँ देखते हैं कि कोई ये दोनों कुछ नहीं है सूटेबल. ये दोनों में कोई नहीं. केवल सूटेबल कौन है? 4 into 3, 4 और 3. और अब यहाँ पर यह जो मिडिल टर्म आ सकता है दोनों से आ सकता है, आइदर ऐड से और सबट्रैक्ट से. ऐसा नहीं कि हमको जिससे इच्छा है वही करें, नो, जिससे पॉसिबल हो, ऐड और सबट्रैक्ट. तो ये किससे हो रहा था? यहाँ 7. 4 और 3 को क्या करते कि 7 आता, ऐड करते. तो यहाँ ऐड से आ रहा है. तो जब ऐड से आएगा तो जो बोथ फैक्टर्स होंगे, बोथ फैक्टर्स will contain middle term sign. मिडिल टर्म साइन. दोनों में मिडिल टर्म का साइन होना है. कब? जब ऐड करके मिडिल टर्म आएगा तब. और अगर सबट्रैक्ट करके आएगा तो जो लार्जर होगा, लार्जर, इसमें होगा मिडिल टर्म साइन, मिडिल टर्म साइन. और जो स्मॉलर होगा इसमें अपोजिट ऑफ मिडिल टर्म साइन आएगा. एकदम क्लियर इसमें कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो. इसी पर पूरा जो है फैक्टराइजेशन होगा. हो गया. नाउ वी कैन राइट द गिवन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x 3x plus 4x plus 3. वन मोर चीज, बहुत से बच्चे को देखते हैं 7 है तो 1 plus 6, 2 plus 5, नो. यह जब भी लिखेंगे तो ये फैक्टर का ही होना है, अनदर नहीं होना है. तो उस स्थिति में हो गया. पहले था नंबर ऑफ टर्म 1 2 3, अब हो गया नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4. अब पेयर बनाना है. कितना पेयर बनेगा? 2. एक पेयर ही हो गए और अनदर पेयर इसमें जाएंगे. इसमें क्या कॉमन है? x. तो क्या बचा? 4x plus 3. इसमें क्या है? कुछ नहीं. तो 1 सब में कॉमन होता है, सबका मल्टीपल्स 1 होता है. ऐसा
is equal to 0. Now 4x plus 3 is taken as common, we get x plus 1. Here 4x plus 3 is equal to 0, 4x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 by 4. Again the other factors, x plus 1 0, x is equal to minus 1. So there are two values of x, minus 3 by 4 and minus 1. These two values are called zeros of the given polynomial 4x square plus 7x plus 3. क्वाड्रेटिक है तो कितना जीरो हुआ? 2. और कभी कभी क्या होगा क्वाड्रेटिक में कि एक ही जीरो आएगा, सिंगल एक जीरो आएगा। तो सिंगल एक जीरो आएगा, इसका अर्थ है वही जीरो 2 बार लिखना है। और इसी का जो 2 जीरो है उसको बोथ जो इसका जीरोज है क्वाड्रेटिक का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो यहां पर हम लोग सीख गए कि जीरोज कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन से ज़्यादा अच्छा है, इसी से निकालिए। इससे कितना वैल्यू आएगा? ऐसे जनरली 2, समटाइम 1 भी आएगा। 1 आने का अर्थ है कि अल्फा भी वही है और बीटा भी वही है। ओके, क्लियर? नाउ इस रिलेशन ऑफ जीरोज टू द कोफिशिएंट, अभी यहाँ लिखे हुए थे, बता भी रहे थे, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कैसे लिखा जाता है? लिख दिया। अब देखो a किसके पहले है? एक्स स्क्वायर के विथ साइन। तो a इज सेड टू बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज सेड टू बी और प्लस b इज सेड टू बी कोफिशिएंट ऑफ x, and this plus is considered as क्या? कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स हो गया। अब रिलेशन है लास्ट, चैप्टर 2 का जो है 2a का यही लास्ट में चल रहे हैं, इसी इसका केवल वेरिफिकेशन है। हियर सी रिलेशन किसका? ऑफ जीरोज, जीरो का किससे? विथ कोफिशिएंट्स। जीरो का कोफिशिएंट से रिलेशन। लेट अस सपोज दैट फर्स्ट सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, पेन का प्रॉब्लम है, सम ऑफ जीरोज इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन सिंबल इट इज रिटेन एज अल्फा plus beta. What is alpha and beta? This what is alpha and what is beta? Alpha and beta are zeros of the given polynomial px is equal to minus b by a. Here see coefficient of x, and also see here coefficient of x is b. So minus to minus, and this coefficient of x, in place of this coefficient of x we write b, and coefficient of x square is a, so here is a. Other product of zeros is equal to constant term by coefficient of x square. It means alpha into beta
is equal to C by A. Here verification of relation. Here see alpha is equal to -3/4, beta is equal to -1. So here alpha plus beta, here see alpha plus beta, alpha -3/4 plus -1 is equal to -3/4 -1. Taking LCM 4 -3 -4 is equal to -7/4. Now see -7 in the given polynomial, quadratic polynomial, 7 is coefficient of x, and it is represented by coefficient of x is represented by b, so it is -b, and 4 is coefficient of x square. Now b by a. Verify the other relation, alpha into beta. Alpha into beta, -3/4 into -1 is equal to 3/4. What is 3 here? Constant term without x, constant term. This is constant term, and this is coefficient of x square. It means C by A. तो इस लेसन में आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है उसके लिए बता दिया गया। सेकंड, डिग्री क्या है पोलिनोमियल का, ये भी जान जाए, इसे जान गए। नेक्स्ट में है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन से अभी बताया। बाद में फिर हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ करके बताएंगे। नेक्स्ट, जब जीरो आ गया तो रिलेशन का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके लिए दो ही है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इतना में 2a हो जाएगा। एक और रह गया जो लास्ट है। लास्ट में है कि इफ जीरोज आर गिवन। अभी तो मेरा इक्वेशन दिया था तो उसका आंसर निकाल दिया, -3/4 और -1। अभी जस्ट हम लोग जो देखा था उसमें क्या देखा, ये सब बुक में मिल जाएगा, ये सब रिलेशन लिखा हुआ, इसलिए बहुत इस पर टाइम नहीं करें, इस पर देखें। अभी हम लोग का एक क्वेश्चन था 4x² + 7x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन अब है कि इसका जो जीरो हम लोग इससे निकाल रहे थे तो 2 जीरो आया था। अब की क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब की है कि वह पोलिनोमियल क्या होगा जिसका ये 2 जीरो अगर दिया हो। ये तो दिया था तो निकाल कर दिया, लेकिन अब की हमको नहीं मालूम है क्या था। खाली इसको दिमाग में रखें कि यही क्वेश्चन था, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर देना है। एक को अल्फा बोले और एक को बीटा। तो इसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा QE इट मीन्स इक्वेशन कर दे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है x² - अल्फा + βx + अल्फा × बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। आप लिख भी सकते हो, न भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। अब इसी को लैंग्वेज में होगा तो x² - सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। जीरो हम लोग इसलिए लगाते हैं कि क्वाड्रेटिक में तो जीरो रहता ही है, और अल्फा बीटा जब फ्रैक्शन वगैरह में आता है तो वहाँ एलसीएम लेकर फिर उसको हम लोग क्वाड्रेटिक में जब बदलते हैं तो इसलिए जीरो का वहाँ पर जरूरी पड़ता है, ऐसे जरूरी नहीं है। अब इसे देखिए, इसी में x², आपका अल्फा क्या था बोलो, 3/4, बीटा क्या था -1 प्लस माइनस -1 x प्लस -3/4 × -1।
दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम क्या हो गया 4 माइनस 3 माइनस 4 एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 3/4 हम जीरो लगाते जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर -7 माइनस 7x/4 बाहर भी लिख सकते हैं अंदर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है प्लस 3/4 ऐसा रहेगा। तो इसको पहले करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7/4x प्लस 3/4 इक्वल टू एलसीएम ले लें 4 बस लास्ट है 4 देख लीजिए तो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस इक्वल टू 0। अब क्रॉस कर दें तो क्या आएगा बोलो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या यही हम लोग का क्वेश्चन था या नहीं है? तो शॉर्ट में इस लेसन में आप फैक्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया। सेकंड चीज क्वेश्चन आ सकता है क्वाड्रेटिक दिया है तो जीरोज निकालें और थर्ड में है जीरोज मालूम है तो क्वाड्रेटिक निकालें और फोर्थ में इसी पर कुछ क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β एक्सेट्रा। तो आज का होमवर्क हम लोग कोशिश करें कि पॉलिनोमियल का आज का होमवर्क है पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट पार्ट है इट मीन्स अगर 2.1 उसमें देखें कोई और बुक में देखिए 2a लिखा हुआ है तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है बनाना है। नेक्स्ट में फिर इसी का नेक्स्ट डे जो भी आएगा बताया जाएगा सेकंड में।